हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हमारा लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 दिन से लाइव की जो है स्ट्रीमिंग की वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब ग्लिच। सो दैट इज़ वाई बच्चों ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ आप लोगों को मिल रहा है एज ए प्रीमियर। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम बॉडी प्लॉट के कुछ PYQ जो हम रह गए थे लास्ट क्लास में, हम नहीं कर पाए थे। हमने बॉडी प्लॉट को डिस्कस किया, लास्ट मैराथन सेशन हमारा हुआ था, उसमें बॉडी प्लॉट के बेसिक कंसेप्ट हमने देखे। एंड आई टोल्ड यू द इनवर्स बॉडी प्लॉट शॉर्ट ट्रिक, यू हैव टू यूज द 3 स्टेप एंड वी विल डिफाइन द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम एनी इनवर्स एनी बॉडी प्लॉट. So in today's class we will discuss some more PYQs based on the body plot. So before going to start, as usual हमेशा की तरह I would like to introduce myself. I am having 10+ year teaching experience for GATE and ESE examination, cracked GATE and PSU exam multiple time, cracked ESE 11, completed 250 batches across 30+ cities in India, trained more than 1 lakh students, taken 70+ motivational seminar in different engineering colleges and awarded as the best faculty of the year at the GATE Academy Bangalore. So student, these all are the benefits of Unacademy Plus classes and these are the other benefits of Iconic classes as well. If we talk about the Unacademy Plus subscription price, then the subscription price of 12 month will become 29, 18 subscription price will become 37 and 24 month subscription price will become 42. Student, if we talk about the Iconic plan, 12 month subscription price will be around 45, 18 month subscription price will be around 58 and 24 month subscription price will be around 66. So you all guys remember the promo code LIVEANK while taking the subscription. If we talk about the batch courses guys, in every 10 to 15 days we are having new batch course on the Unacademy Plus dashboard. You guys can enroll by using the promo code LIVEANK. Student, you can also unlock the last 10-year GATE question papers that is available on the Plus dashboard. So student, these all are the slides, these all are the questions we have already completed in the last class. Even we have also seen the inverse body plot tricks, and after that I think this question already completed, this one also completed, this one also completed. I think this was the last question of last class, this one. After that this question completed already in the last class only, and this question also we have completed, and this was the last class question, this was the last question of last class that we have already completed based on the body plot. Yes or no guys? Yes. So today's class I am going to start with this GATE question, and it is a very good question guys. Electronics 2014 GATE question it is, and the question says that the phase margin in degree of this transfer function calculated using the asymptotic body plot. अब बच्चों ये एक GATE क्वेश्चन है जहां एग्जामिनर आपको ये बोल रहा, हिंट दे रहा है कि एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट बनाते हुए आप इसका फेज मार्जिन निकालिए। तो बच्चों एक चीज हमको यहां से ध्यान आता है कि फेज मार्जिन ऑलवेज कैलकुलेट एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज मार्जिन हमेशा ओमेगा जीसी पे निकाला जाता है, और अगर बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट बना देंगे तो हमको वहां से ओमेगा जीसी वो फ्रीक्वेंसी मिल सकता है जहां पे कर्व 0 dB को इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों आपको अगर इसका बॉडी प्लॉट बनाना आता है तो आई थिंक यू ऑल गाइज रिमेंबर दिस कंसेप्ट that to make the body plot, first of all, to make the body plot, what we need to do my dear student, to make the body plot, what we need to do, the first thing we should convert this transfer function into a time constant form. First of all, we should convert the time constant into a time constant form. Tell me guys, yes or no? So this transfer function we need to convert in the time constant form, sir. Definitely, sir. So GS equal to what, sir? This is what, guys, your G of S. You should take outside 0.1 and tan. So when you will take outside, what you will get? You will get tan only. Yes, sir. Here is 0.1 outside, tan outside. So tan into 0.1 is again the same. So what we are getting? We are getting the same S plus 0.1. We can write like this, S upon 0.1. And here we should write 1 plus s, and here we should write 1 plus 0.1 s. I hope you are getting क्या किया मैंने, 10 को बाहर निकाला, 0.1 को बाहर निकाला, but 10 into 0.1 मिलके 1 ही बन गया, तो ऊपर तो 10 ही रहा. Yes sir. Now how many corner frequencies we are having, sir? So we are having 3 corner frequency here. Omega C1 is 0.1, omega C1 is 0.1, omega C2 is what guys, 1, and we can say that omega C2 is tan radian per second. तो जो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है वो तीनों ये रही सर, 0.1, 1 और 10. यस,
अब बच्चों जरा बताओ कि यहाँ पे k का रोल क्या है, तो आप बोलोगे सर k यहाँ पे DC गेन है, एंड फॉर स्टार्टिंग द Bode plot वी शुड फाइंड आउट द c जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला c इक्वल टू 20 log 10k, and you know the value of k guys, you all guys know the value of k, I hope you remember. Yes, so if you guys remember the value of gain k as a 10, then you should put the value here 20 log of 10, and the k value is nothing but guys 10 only, so we are having c equal to 20 dB only. We are having c equal to 20 dB only. Every student just do reply, is this clear or not प्यारे बच्चों? Yes sir, is this clear? So it means you guys supposed to start the curve, you guys supposed to start the curve from 20 dB. Do you guys agree with me? Yes. So here is 0 dB line sir, here is 20 dB line sir, and here is 40 dB line sir, and here is your magnitude, so you should write magnitude of gj omega hj omega in dB. Is this clear? Yes. So ये है आपका omega in log scale, omega in log scale. Yes. We should start the curve from this point, so you are supposed to start your curve from 20 dB line. Yes or no बच्चों? Yes. Now initial slope is 0 only. Why the initial slope is 0 sir? Because we are not having any poles and 0 at origin. We don't have any single poles and 0 at origin. It means we are having the 0 initial slope only. And as soon as the first corner frequency will come, that is 0.1, as soon as the first corner frequency will come, that is 0.1, because this frequency contribute one pole, so it will provide the slope of minus 20 dB per decade. So it means, my dear student, what will happen, your curve will be travel with minus 20 dB per decade like this, and because the slope is minus 20 dB per decade, right now we are at 0.1, so if I will travel 1 decade distance, don't you think I will reach at 1? If I will start my journey from 0.1, don't you think I will travel till 1 only? Yes sir. Still student, we are at 20 dB, so in the y-axis how much distance I have traveled? In the y-axis I have traveled 20 dB distance, and from the x-axis we have traveled 1 dB from 0.1 to 1. Yes sir. So what is the slope? What is the line of this slope? The slope line is minus 20 dB per decade. I hope you are getting the point. Yes. And my dear student, as soon as the next corner frequency will come, and by chance the next corner frequency is 1 only, and this next corner frequency again exists in denominator, so it is working as a pole, and pole will provide minus 20 dB per decade slope. So it means what we should write guys, we should write like this, we should make the equation like this. Every student just do reply fast, each and every student just do reply fast. Here is one. After that what will happen guys, after that 10 radian per second will come, na sir, 10. As soon as the 10 corner frequency will come, then what will happen? As soon as the 10 corner frequency will come, then what will happen? Tell me. Again the 10 corner frequency exists in the denominator, so it is working as a pole, and it will provide the slope of minus 20. So we will get like this, So student, I hope you are getting the exact Bode magnitude plot. The line of this slope will be minus 40 dB per decade, and the line of this slope will be minus 60 dB per decade. Every student just do reply, is this clear or not? Every student just do reply, is this crystal clear or not? Yes. So we are having this minus 20 dB per decade, minus 20 dB per decade, minus 40 dB per decade, minus 60 dB per decade. This is the omega in log scale. Yes sir. So you guys need to tell me what is the corner frequency here. What is the gain crossover frequency here? We know that the frequency at which we will intersect the 0 dB line, Yes sir. So that is why this omega equal to 1, this omega equal to 1 radian per second, this omega equal to 1 radian per second is nothing but, this omega equal to 1 radian per second is nothing but your gain crossover frequency, omega GC. Every student just do reply, is this clear or not?
तो बच्चों ये आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ओमेगा जीसी से बोलते हैं। और अगर आपको ओमेगा जीसी 1 मिल गया तो फेज मार्जिन के लिए क्या आप अब फाई निकाल सकते हो? यस सर। हाउ कैन यू डिफाइन फाई माय डियर स्टूडेंट? सो इफ यू टॉक अबाउट द फाई वैल्यू वी कैन राइट द एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, the angle of gj omega hj omega at omega equal to omega gc, at omega equal to omega gc will give you phi, and the phase margin will be 180 plus phi. Every student just do reply, is this clear or not? Yes sir. So student, if we are having angle of gj omega hj omega at omega gc equal to phi, your phase margin will be 180 plus phi, and if we will write the phase margin here, then you guys need to tell me what is 180 plus 5. What is phi, sir? Angle of gj omega. So can you calculate the angle if you know the transfer function, and your transfer function is nothing but tan upon s plus 0.1, tan upon s plus 0.1 in s plus 1 s plus 10. So here is s plus 1 and here is s plus 10 only. Yes or no, bachcho? I hope you guys agree with me. Till here you guys don't have any single doubt, I hope. As far as angle is concerned, first of all we should put s equal to j omega to define the angle, you know very well. So replace j omega wherever you are finding s, just replace j omega only. So you will get tan upon j omega plus 0.1. Here we should also write j omega plus 1, and here we should also write j omega plus 10. If we talk about the angle of gj omega, dear student, don't you think the first angle is nothing but, sir, minus tan inverse omega upon 0.1. This angle is nothing but, sir, minus tan inverse omega by 1, and this angle is nothing but minus tan inverse omega by 10. I hope you are getting, guys. I hope you all guys getting the same. Yes. So this is what, guys, the angle. This is what, guys, the angle of gj omega. When you will put the value of omega gc here, and the last slide, in the last side we have calculated omega gc and we got omega gc 1, sir. We got omega gc 1, sir. Yes. So we should put the value of omega gc 1 here. We should put the value of omega gc 1 here. Okay, guys. You guys need to tell me what is the angle of gj omega. Just calculate this. Just calculate this, guys. So what you will get, tan inverse omega value is 1 upon 0.1 actually. Yes. And again minus tan inverse. Here omega value is 1 only, we know very well. Here the tan inverse value 1 upon 10 means 0.1 only. Just calculate this at omega gc. So it is nothing but actually 5. Just calculate this, guys. When you will calculate what you will get, you guys need to tell me. When you will calculate, because all the angles are negative only, na sir. All the angles will be negative only, sir. So बच्चों, अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ करते हो, आप लोग जरूर देखिए. आई शुड ऑल्सो चेक विथ कैलकुलेटर. सो अगर कैलकुलेटर से वैल्यू चेक की जाती है बच्चों, सो आप लोग सभी कैलकुलेटर को यूज़ करिए. मैं भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ. फिर हम देख लेते हैं. ठीक है बच्चों. तो क्योंकि हमको एंगल का वैल्यू निकालना है यहाँ, सभी लोग साथ साथ में वैल्यू निकालेंगे. सभी वैल्यू साथ साथ में निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों. सो वी शुड फाइंड आउट tan इनवर्स. सो स्टूडेंट, व्हेन यू विल कैलकुलेट यू कैन इजीली फाइंड आउट. तो मैं चाहूँगा कि शायद आप लोग इसको कैलकुलेट करें बच्चों. tan इनवर्स का वैल्यू शायद आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. आई होप आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. यस. तो जो tan इनवर्स का जो वैल्यू है, tan इनवर्स 10 का वैल्यू आ गया बच्चों आपका 1.47 के आसपास. यस. इवन हमको डिग्री में चाहिए था सर. वी हैव टू फाइंड आउट इन डिग्री ओनली. तो चलिए, अगर हमको डिग्री में फाइंड करना है, सो गाइज हियर इज. तो बच्चों शायद ये साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल नहीं रहा है मेरे पास. आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों. और जैसे ही फाई का वैल्यू यहाँ आएगा ना, आप फेज मार्जिन यहाँ रख सकते हो. यू विल गेट द फेज मार्जिन वैल्यू. आई थिंक ये सिंपल एक 10 सेकंड का काम है जो शायद आप कर सकते हो. और मेरा स्टूडेंट को ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कैसे वो एंगल निकालेगा. tan इनवर्स 1 तो 45 होता ही है बच्चों. इनका वैल्यू भी आप निकाल दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो फेज मार्जिन ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा. तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा फेज मार्जिन का, वो आप लिख सकते हो. बड़ा आसान क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था. आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों. यस.
सो आई थिंक गाइज यू डोंट हैव एनी सिंगल डाउट टिल हियर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। यस, सो अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2010 क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज इलेक्ट्रॉनिक 2014 IIT खड़गपुर क्वेश्चन, IIT खड़गपुर क्वेश्चन, यस और नो। तो जो लोग भी सुन पा रहे हैं, संकल्प, नीलांजलि, विनीला, सब जो लाइव क्लास में बच्चे आते हैं, बच्चों सभी लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, पार्थ और भी जो सभी स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप बस क्लास को देख रहे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मैं भी काफ़ी परेशान हो रहा हूँ कि मैं आपसे लाइव बात नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच। अब ये यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लाइव नॉट ओनली माई क्लास, इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है पिछले 24 घंटे से, तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे लास्ट 2 क्लासेस भी नहीं हो पाई। आपने लाइव चैट में आके इंतजार भी किया था, मैंने देखा था। तो बच्चों अब ये प्रीमियर वीडियो हम दे रहे हैं, इसीलिए तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अभी हम नेक्स्ट में, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट। For the asymptotic body magnitude plot shown below, the system transfer function can be. So this is the magnitude in dB guys, and this is the omega. So how you can initiate the question? How we can initiate the question guys? The options also we are having. The options also we are having. अभी लाइव क्लास होता बच्चों तो कम से कम 2 मिनट का टाइम देता मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मैं अभी केवल और केवल 10 सेकंड के लिए आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ। 0.1 और 10 है। अब आप सोचो कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ बच्चों, लाइव क्लास में अगर चैट बॉक्स में मैं पूछता आपसे तो आप सब ये रिप्लाई करते कि सर यहाँ पे जो स्लोप चेंज है ना, यहाँ पे जो स्लोप है ना इस लाइन का, वो 40 dB पर डिकेड है। ये इंडिया में बहुत से लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो 40 dB पर डिकेड बोल देते हैं। तो बता रहा हूँ बच्चों, अगर ये लाइव क्लास में देता ना तो आप में से बहुत से लोग चैट बॉक्स में मिस्टेक करते, गलती करते। अभी मैं बताता हूँ बच्चों आपको, 0.1 से 10 एक डिकेड नहीं है। 0.1 से 10 तो 2 डिकेड हो गया सर। 0.1 से 1 एक डिकेड है। 0.1 से 1 एक डिकेड है। 1 से लेके 10 एक डिकेड है बिल्कुल है सर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, बोलो 20 सर, लिख सकते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें। जरा बताओ बच्चों इस लाइन का स्लोप क्या हो गया। डोंट यू थिंक द स्लोप लाइन इज +20 dB पर डिकेड, +20 dB पर डिकेड। टेल मी गाइस, टेल मी यस और नो। तो बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो 20 dB पर डिकेड है सर। और इनिशियल स्लोप जो था वो 0 था। इनिशियल स्लोप क्या था बच्चों, यहाँ 0। इनिशियल स्लोप क्या था प्यारे बच्चों, 0 था ना सर। इनिशियल स्लोप 0 था सर। सो अगर इनिशियल स्लोप 0 है, जैसे ही 0.1 आया स्लोप +20 का हो गया, मतलब आपका 0 आया। यू शुड राइट इन द न्यूमरेटर एंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 0.1 ओनली, सो वी शुड राइट ना 1 + s अपॉन 0.1 ओनली। एंड राइट नाउ वी आर रनिंग एट हियर गाइस, जैसे ही 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया, आपका स्लोप जो पहले +20 dB पर डिकेड था उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, -20 का, तभी तो वो 0 हो गया। तो इट मीन्स वी शुड राइट 1 + s अपॉन 10 ओनली। यस, इट मीन्स वी शुड राइट 1 अपॉन 10 ओनली। इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? यस, एंड वी शुड राइट k हियर। सो gs इक्वल टू k डॉट s + 0.1 s + 10। If we talk about the y equal to mx plus c, if we talk about y equal to mx plus c, what is the y value guys? Y value will be 0 dB. Y value will be 0 dB. Is this clear? Yes. What is the initial slope? Initial slope is also 0. Initial slope is also 0, so no value of this log plus c. So actually c value is also 0. And you guys know very well कि sir c equal to होता है क्या, 20 log 10 k. If c value is 0, then don't you think we should write 20 log 10 k? So k value will be 10 to the power 0. So k value will be 1 only. Is this clear बच्चों? क्या बच्चों k का वैल्यू 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। क्या बच्चों k का वैल्यू 1 आएगा, हाँ या ना? यस सर, k वैल्यू 1. So that is why your final transfer function will become gs k equal to 1 and dot k equal to 1 dot. Here we can write 1 upon 0.1 means we should write 1 plus 10s upon, we should write 1 plus 0.1s. Each and every student just do reply fast. Each and every student just do reply fast. So gs value equal to 1 dot 1 plus 10s upon 1 plus 0.1s. Is this clear bachcho? Is this crystal clear or not dear student? Yes sir. So that is why your correct answer is 1 plus 10s upon 1 plus 0.s, 1 plus 10s upon 0.1s, option number A for Ahmedabad. Yes. So student, it is a very good question जहाँ एक भी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं था। अगर मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाता, बहुत से लोग स्लोप को बोल देते 40 dB पर डिकेड, क्योंकि वो ट्रैवल करते 40 और यहाँ ध्यान नहीं जाता है जनरली। तो 0.1 से 1
एक डिकेड है, कुछ लोग 0.1 से 10 को डिकेड बोल देते हैं, आंसर रॉन्ग आ जाएगा बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन था जहां हमने एग्जैक्टली आंसर निकाल दिया है और आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। सो एक 2 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन गेट 2010 में आया, हमने जस्ट अभी सॉल्व कर लिया बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आइए अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है बॉडी प्लॉट के ऊपर, इसीलिए मैंने आपको पहले डायरेक्ट इनवर्स बॉडी प्लॉट नहीं पढ़ाया। पहले मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप स्लोप को रीड करेंगे, कैसे आपको स्लोप कंसेप्ट पता हो, क्या होता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज एंड हाउ टू मेक ए बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये पहले हमने सीखा था। उसके बाद हमने इनवर्स बॉडी प्लॉट देखा था। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट पूछ लिया, मतलब ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और आपको बॉडी प्लॉट ऑप्शन में पूछ लिया। तो आइए हम इसका बॉडी प्लॉट बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड ऑब्जर्व टू मेक ए बॉडी प्लॉट, वी शुड कन्वर्ट द ट्रांसफर फंक्शन इनटू टाइम कांस्टेंट फॉर्म। एंड स्टूडेंट व्हेन यू विल ऑब्जर्व दीज ऑल यू विल गेट टू नो कि सर ये ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं है। सो वी हैव टू टेक आउटसाइड दिस 10 इन द डिनोमिनेटर, वी हैव टू टेक आउटसाइड 100 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो अल्टीमेटली यू नीड टू टेल मी when I will convert this transfer function into time constant form, what I will get? 10 to the power 4 dot 1 plus j omega upon, student when you will take outside 10, when you will take outside 100 square sir, so 10 to the power 2, so it is 10 to the power 4 sir, yes. So what you will get? You will get 1 plus j omega upon 10, and from here you will get what guys? 1 plus j omega upon 100 whole square only. Each and every student just do reply, is this crystal clear or not guys? Is this crystal clear or not? Yes sir. So 10 to the power 4, 10 to the power 4 get cancel out sir. So your ultimate value is what? Ultimate value is the transfer function is nothing but sir 0.1, 1 upon 10 sir. Okay sir, no problem. We should write 1 plus j omega here, no problem sir. And here we should write what guys? 1 plus j omega upon 10. Should write here 1 plus j omega upon, you should write here 1 plus j omega upon 10. And you should also write what guys? 100 outside आया ना सर, तो 1 plus j omega upon 100 whole square. Is this clear or not? Is this clear or not? Yes. Now how many corner frequencies we are having? So from the diagram, from the transfer function itself, we can comment that omega first corner frequency is 1, second is 10, third is 100. Yes. So we are having 3 corner frequencies sir. We are having the first corner frequency as a omega c1. Omega c1 value is 1. The second corner frequency omega c2 as a 10. And omega c2, omega c3 corner frequency as a 100. Omega c3 corner frequency as a 100. Yes. So every student just do reply fast. Yes sir. तो बच्चों ये है आपका ओमेगा c1, ये है आपका ओमेगा c2, ये है आपका ओमेगा c3. यस. तो ये है ओमेगा c1, ये है ओमेगा c2, ये है ओमेगा c3, 1, 10 और 100. यस सर. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा c1, ओमेगा c2, ओमेगा c3, 1, 10, 100 ये आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले आपको यहाँ बनाना है बच्चों बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट। सबसे पहले आपको यहाँ बनाना है बच्चों बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट जस्ट लाइक दिस। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव करके वापस से एक लाइन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ। अब देखिएगा बच्चों हम बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट जो बनाते हैं उसमें लॉग स्केल लिखते हैं और ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ ओमेगा इन लॉग स्केल। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ जो रिप्रेजेंट करेंगे ना वो ओमेगा होगा। ठीक है बच्चों, यस। यहाँ अगर 0 पॉइंट, यहाँ अगर ये लाइन 0 dB होता है और दिस लाइन इज प्लस 20 dB, दिस लाइन इज 40 dB, दिस कर्व इज मैग्नीट्यूड कर्व इन dB, दिस लाइन इज माइनस 20 dB, this line is minus 40 dB, like this we are having, so like this line is at 0.1, yes, this line is at 1, this line is at 10, this line is at 100. I hope you are getting this. This is decade sir, decade, and these are the frequency of omega. This is omega equal to 1 radian per second, this is omega equal to 10 radian per second. Is this clear or not guys? Yes. So you need to tell me what is the value of k first of all, because here no, in this transfer function no poles and 0 at origin.
in this transfer function, no poles and 0 at origin, it indicate the initial slope is 0 only. It means you can start your curve from the C value only. And what is the C value? It will depend on K, sir. And what is the K, sir? K is 0.1, sir. So you should write the value of C, and we know the formula C equal to 20 log 10 K. So when you will put the value, what you will get? You will get 20 log 10. What is the value of K, guys? The K value is nothing but 0.1, na sir. So ultimate your answer C will be what? 0.1, na sir. So ultimate your answer will be C equal to minus 20 dB. Each and every student just do reply fast. Shall we go for next? हाँ या ना? Yes or no बच्चों? Yes. चलिए बच्चों, तो काहे पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में. For the unmatchable learning of control signal digital student, one and only solution, Ankur Sharma sir. और बच्चों, you guys can connect with me so that you will get all the updates about the classes and all. तो बच्चों, ये है आपका C इक्वल टू माइनस 20 dB. इसका मतलब आपका इनिशियल जो कर्व है वो कहाँ से चल रहा है? वो कर्व चल रहा है माइनस 20 dB से, इस तरह से, कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह. यस. पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आई सर? क्या पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आई सर. अच्छा 1 आया क्या? हाँ 1 आया. The first corner frequency is 1, na sir. The first corner frequency is 1, and actually the first corner frequency 1, it is exists in the numerator. It is exists in the numerator, and we know very well once that term exists in numerator, it will behave as a 0 and it will provide the slope of plus 20 dB per decade. जोर से बोलो बच्चों, हाँ या ना? Yes. So my dear student, what you will get now? What you will get if at corner frequency 1. If at one corner frequency, the slope will be plus 20 dB per decade, plus 20 dB per decade, then don't you think we should travel like this? Don't you think we should travel like this? Tell me guys, yes or no? Yes. So what we are having? We are having 0 dB line, okay. And this line is nothing but we are having plus 20 dB per decade, plus 20 dB per decade. Every student just do reply, is this crystal clear or not? Yes or no? So initially we are at 0 only. As soon as the one corner frequency will come, because it is exists in numerator, it is working as in 0, it will provide the plus 20 dB per decade slope. And जैसे ही next corner frequency आया जो कि 10 है, 10 corner frequency. Because this term exists in denominator, it is working as in pole, it will provide the slope of minus 20 dB. So student, अगर minus 20 slope देगा, अभी आप plus 20 पे हो, अभी आप लोग कहाँ हो? अभी तो सर हम घर पे हैं. अरे आप तो घर पे हो, लेकिन अभी कर्व में हम कहाँ पे हैं? अभी इस कर्व के अंदर हम, कुछ लोग इतने इनोसेंट होते हैं बच्चों, अगर हम उनसे पूछते हैं अभी हम कहाँ पे हैं, तो सर अभी तो हम घर पे हैं सर. अरे ये जो स्लोप है, अभी आप प्लस 20 पे हो और माइनस 20 ऐड होगा तो यू विल रीच एट 0 ओनली. यू विल रीच एट 0 ओनली. यस. कब तक रहेगा सर 0? कब तक रहेगा? जब तक नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए सर. एंड द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल बी 100 ओनली. So if the next corner frequency is 100, at the 100 corner frequency, how many poles we are having? We are having 2 poles. It means we should provide the slope of minus 40 dB per decade. Minus 40 dB per decade, so yes. So the slope will be minus 40 dB per decade, just like this. Just like this. Each and every student just do reply, is this clear or not, guys? Is this clear or not, guys? Yes or no? Yes. So what we are having at this point we are having the slope of minus 40 dB per decade. This is the slope of, guys, plus 20 dB per decade. Yes sir. Now student, this is the curve, final curve, absolute curve. But what is happening in the options, you need to tell me. What is happening in the options, you guys need to tell me. In the options, we have to make the curve not only omega, log omega. Here in the x-axis log omega is given actually log omega is given. Oh हो मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा. log omega given. अच्छा क्या करेंगे log omega? इसका मतलब जो भी ये ओमेगा है उसका log ले लो, log 10 ले लो. यस. क्या होता है log 1? क्या होता है पता आपको? log 1 क्या होता है? log 1 0 होता है. log 1 0 होता है, ये पता होना चाहिए. नहीं पता है तो पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं पता. log 1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0. तो अगर आप ये ओमेगा का वैल्यू, ये ओमेगा का वैल्यू, और अगर मैं इसको log 1 लिखूंगा तो ये 0 आ जाएगा. ये log है. log 10 कितना होता है? 1 होता है. मतलब ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, लेकिन अगर मैं log ओमेगा करूंगा, log 10 करूंगा तो 1 आ जाएगा. तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1 से रिप्लेस होगा, ये 0 से रिप्लेस होगा, और ये जो है ये 2 से रिप्लेस हो जाएगा. अच्छा मतलब यहाँ पे 0 दिखाई देगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. हाँ,
मतलब 0 पे जाके स्लोप +20 फिर कांस्टेंट फिर ऐसा, मतलब स्लोप कुछ ऐसा 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 होगा और ऐसा करो केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, पता आपको, वो है ऑप्शन नंबर अहमदाबाद। देखो ऐसा 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 ऐसा, और यहां कहां चेंज होगा, मैंने बोला 0, तो इसने क्या किया 0 पे ले लिया एक्सेस को, तो एक्सेस को आगे ले लिया, log 1 0 वैल्यू यहां ले लिया, उससे पहले -20 पे आ रहा है, फिर 0 से 1 के बीच में स्लोप जो है वो +20 है, हमारा भी है क्या, देख लो। हाँ सर हाँ सर हाँ सर, ये 0 से 1 के बीच में हमारा भी +20 है सर, बिल्कुल है। फिर 1 से लेके 2 के बीच में हमारा कांस्टेंट लाइन है क्या, 1 से लेके 2 के बीच में हमारा कांस्टेंट लाइन है क्या, 1 से लेके 2 के बीच में कांस्टेंट लाइन है सर, बराबर है सर, बराबर है। और 2 के बाद फिर स्लोप चेंज हो गया, बिल्कुल सर, मजा आ गया, देख लीजिए स्लोप चेंज हो गया हमारा भी, इसीलिए ये का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। I hope you all guys getting the same guys. I hope you guys don't have any single doubt. So, every student should reply fast. Each and every student should reply fast. Shall we go for next? बोलो बच्चों, क्या बोलते? कमाल हो जाएगा सर, ये तो मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों ये है आप लोगों का क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। यस, उसका आंसर क्या था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, यस। बताइए, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016, द बॉडी प्लॉट ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम में डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, द स्लोप -40 dB पर डिकेड ओमेगा 0 लेस देन 0.1 पे, द स्लोप -20 dB पर डिकेड 0.1 से लेके 10 तक, एंड स्लोप 0 एट ओमेगा ग्रेटर देन 10 रेडियन पर सेकेंड। बोलो बच्चों यस और नो। यस। सबसे पहली चीज आपको ये देखना चाहिए बच्चों, इनिशियल 0.1 से पहले आपका स्लोप -40 है, -40 मतलब 2 पोल। यस। उसके बाद स्लोप -20 रह गया, -40 में क्या किया होगा कि -20 रह गया होगा सर, ऑफकोर्स +20 किया होगा। तो पहले हमको 2 पोल मिले थे सर, लेकिन 2 पोल ने स्लोप -40 दिया था, उसके जस्ट बाद अब नेक्स्ट 0.1 से 10 के बीच में क्या हुआ होगा, 0.1 से 10 के बीच में 0.1 रेडियन पर सेकंड में कितने का स्लोप कंट्रीब्यूट हुआ होगा, +20 का कंट्रीब्यूट हुआ होगा, तभी तो जो हम -40 पे आ रहे थे अब हम -20 पे रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि +20 का मतलब हो गया 0। अभी आप -20 पे चल रहे हो और हमारा 2 पोल के बाद एक 0 आ चुका है, अभी हम यहाँ तक निपटा चुके, आगे चलते हैं। स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 कैसे हो गया, -20 में क्या करेंगे स्लोप 0 हो जाए, -20 dB पर डिकेड में क्या किया जाए कि स्लोप 0 हो जाए। यू गाइज ऑल नीड टू टेल मी व्हाट वी नीड टू डू इन -20 dB पर डिकेड, व्हाट वी शुड डू इन -20 dB per decade so that it will become 0. We have to add +20 सर। तो -20 में अगर +20 ऐड करोगे बच्चों, -20 में अगर +20 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा सर। तो we should write 1 0 only. We should write 1 0 only. So each and every student just do reply fast. Is this crystal clear or not प्यारे बच्चों? Is this crystal clear dear student? Is this clear? Is this clear? Yes. So 2 pole 1 0 1 0. Total how many poles sir? So we are having 2 poles and 2 zeros. Correct answer ऑप्शन नंबर बॉम्बे। क्या बोलते हो बच्चों? सो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक गिफ्टेड क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू यूज द कैलकुलेटर, बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन या डिराइव भी कुछ नहीं करना, डेरिवेशन भी कुछ नहीं करना, आता है कंसेप्ट तो केवल स्लोप को उंगली पे काउंट करो और आंसर बताओ। इज दिस क्लियर बच्चों? यस। चलिए आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का गेट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप लोग ट्राई करें, जो लोग फ्यूचर में रिकॉर्डिंग में इसको देख रहे होंगे, वो इसको यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और फिर ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन को, एक बार अपने से ट्राई करें। अगर आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है। कितने लोगों को याद आया ऑक्टेव? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको ऑक्टेव, -6 dB पर ऑक्टेव इज नथिंग बट -20 dB पर डिकेड। -6 dB पर ऑक्टेव, -6 dB पर ऑक्टेव इज इक्वल टू -20 dB पर डिकेड। मतलब अगर हम -6 dB पर ऑक्टेव की बात करते हैं बच्चों तो वो -20 dB पर डिकेड हो जाता है। यस। चलिए तो प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे -6 dB पर ऑक्टेव और इक्वल टू -20 dB पर डिकेड है सर, और द वैल्यू ऑफ A अपॉन बी के इज वाट, द वैल्यू ऑफ A अपॉन बी के इज वाट, द वैल्यू ऑफ A अपॉन बी के इज वाट। यस, चलिए सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है और अगर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन भी दिया है, अगर आपको एक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है और अगर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन भी दिया है, देखो आप, सो बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये ट्रांसफर फंक्शन, इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? तो ये है आपका बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अगर आपको यहाँ कुछ कांस्टेंट रखे हैं ए बी और के और ये फाइंड करने हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, यू शुड राइट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम दिस ट्रांसफर फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट। अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना आता है डायग्राम से, बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट से, आप अपना ट्रांसफर फंक्शन लिख दीजिए और इसके बाद इससे कंपेयर कर लेंगे, जो भी अननोन होगा वो निकल के आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो हाय। The first thing that you should notice, as I told you in the inverse Bode plot, I have given to you 3 steps. The first step was observe the starting slope. I told you in the last class. Observe the starting slope. केवल observe नहीं करना, उसके आगे ये क्या बताता था सर? Observe the starting slope. It will provide the information about poles and zeros at origin. It will provide the information about poles and zero at origin. So because the initial slope is -6 dB per octave, or we can say that -20 dB per decade, it means we are having one pole at origin. It means we are having one pole at origin. Yes. Now after that, student, as soon as the 2 radian per second will come, as soon as the 2 radian per second frequency will come, what we need to add in -20 so that it will become 0? -20 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 0 हो जाए? -20 dB पर डिकेड में क्या ऐड कर दिया जाए कि 0 हो जाए? तो जैसे ही 2 रेडियन पर सेकेंड आया बच्चों, वी हैव टू ऐड +20 हियर, वी हैव टू ऐड +20 हियर, and when you will add +20, it means you have to write in the numerator. So what you should write? 1 + s upon 2, 1 + s upon 2. Is this clear, guys? Yes. So right now you are here only. Yes. So as soon as the 4 radian per second will, as soon as the 4 radian per second will come, the frequency यहाँ पे हो जाएगा सर +6 dB पर डिकेड, और +6 dB का मतलब होता है +20 dB पर डिकेड। तो जैसे ही 4 पे आए हम, +20 हो गया, मतलब अगेन एक 0 आया सर, अगेन 0 मतलब वी शुड राइट इन द न्यूमरेटर 1 + s upon 4। यस। सो स्टूडेंट, अगर मैं 8 पे चलता हूँ यहाँ पे, तो ये अभी जो स्लोप है वो +20 dB पर डिकेड है। +20 dB में क्या करें कि 0 हो जाए? -20। मेरे को लगता है आप मेरे से आगे आगे चल रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो 8 रेडियन पर सेकंड पे पोल आएगा सर, पोल मतलब डिनोमिनेटर आएगा सर, तो वी शुड राइट 1 + 8 s upon 8। सो एज सुन एज द 8 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी विल कम, देयर विल बी ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ -20, और -20 के कॉन्ट्रीब्यूशन से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पोल बन जाएगा, 1 + s + 8 बन जाएगा। एंड राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग हियर, राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग हियर। जैसे ही हम 24 पे है, as soon as we will reach at 24, as soon as we will reach at 24, there is change in slope -6 dB मतलब -20 dB, -20 dB मतलब one pole at which corner frequency? 24. So we should write 1 + s upon 24. We should write 1 + s upon 24. Yes. And right now we are traveling at -20. अब जैसे ही 36 आया, the change in slope will occur and the slope will be -40. तो बच्चों ये -20 पे था और -40 हो गया। -20 में क्या करें कि -40 हो जाए? अगेन -20 मतलब अगेन ए पोल मतलब डिनोमिनेटर बच्चों, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ लिख दोगे आप 1 + s upon 36, 1 + s upon 36. Do you guys all agree with me? How many of you guys agree with me? Please let me know. So now we are having the gain k. Now we are left with the gain k. और बच्चों, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर गेन k के लिए तो हमको इनिशियल स्लोप तो पता है, लेकिन ना तो ये वैल्यू पता ना तो ये वैल्यू पता, क्या करेंगे? तो बच्चों, ये एग्जामिनर ने जो आगे ले जाके डॉट लाइन बनाया है ना, इट इज़ नॉट डिज़ाइन की, डिज़ाइन नहीं बनाया है उसने आप लोगों को के दे दिया है, क्योंकि जो इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड लाइन, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, -20 dB पर डिकेड वाला लाइन अगर आगे जाके कहीं कट करेगा ओमेगा को, तो वही ओमेगा के होगा सर, क्योंकि यहाँ -20 मतलब n का वैल्यू 1 है सर, ओमेगा = k की पावर n होता है। लास्ट क्लास में बताया था, पूरा डिराइव करके, पूरा डेरिवेशन करके हमने देखा बच्चों, ओमेगा = k आया था। तो क्या यहाँ k = 8 है बच्चों? यस। तो यहाँ पे k = 8 हो गया सर। अब बस कंपेयर कर लो बच्चों, तो k का वैल्यू सर 8 कंपेयर हो गया,
ऐसा 1/2 मतलब 0.5 हो गया, 1 प्लस ए एस मतलब ए का वैल्यू 1/4 हो गया। यस सर। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट हियर बी वैल्यू यू कैन कंपेयर, बी वैल्यू 1/24 हो गया सर, बी वैल्यू 1/24 because examiner is asking for a upon bk, because the examiner is asking for a upon bk, so what we should write as a 1/4 upon bk. What is the value of b? B value is 1/24 into k. K value is what guys? 8 only. Yes. So what we should write ultimately, we should write here 1/4 or 24 is upper side and here is 8 only. So you guys need to tell me क्या ये 4 6 जा 24 और क्या ये बच्चों 2 3 जा 6 2 4 जा 8. So don't you think it is 0.5 3/4 only? So the numerically entry question guys, you should type the answer as 0.75 only. This will be your final answer. I hope you are getting the point. I hope you guys all getting the point. Is this crystal clear or not dear student? Just do reply. Reply आपके नहीं देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन I hope कि आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे एज यूजुअल, जैसा आप हमेशा लाइव क्लास में सुनते हो। लाइव क्लास नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्डिंग में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका जो आपका टाइम है उस पर आपको मिल जाए पूरा कंटेंट। इज दिस क्लियर बच्चों? यस। चलिए, तो ये है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल 2014। ये है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए EE2014। ये है आप लोगों के लिए EE2014। यस। तो चलिए बच्चों आइए यहाँ पे, ये है आप लोगों के लिए जीएस वैल्यू, ये है आप लोगों के लिए क्या बच्चों? जीएस वैल्यू। तो ये 2 मार्क्स है बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था जो हमने अभी परफॉर्म किया। आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए नेक्स्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स 2018। इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स 2018। सो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पूछा गया इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2018 क्वेश्चन। आइए बात करते हैं द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS ऑफ द बोडे प्लॉट एज शोन इन द फिगर इज व्हाट? एज शोन इन द फिगर इज व्हाट? यस सर। So you guys need to tell me the transfer function GSHS of a body plot shown in the figure। ये रहा सर। अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली लास्ट क्वेश्चन से आसान क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में गेन के का वैल्यू पूछा ही नहीं है, गेन के को केवल के ही लिख के दे दिया। मतलब आपको केवल ये चेक करना है कि किस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे 0 आ रहा है और किस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे पोल आ रहा है। यू गाइज नीड टू चेक ओनली एट विच फ्रीक्वेंसी पोल अकर and at which frequency 0 occur. You need to check first of all initial slope. The 3 steps is that the step number 1 is observe the starting slope that will provide the information about the poles and 0 at origin. The step number 2 is observe the change in slope at each and every corner frequency that will provide the information about the first order and second order factor. Do you guys remember? Yes. And after that student, the step number 3 is y equal to mx plus c, and where c equal to 20 log k. Tell me guys, tell me yes or no. Where c equal to 20 log k, is this clear or not? C equal to 20 log k, is this clear or not? Do you reply? Do you all guys getting the same or not? Yes sir. The OLTF open loop transfer function GSHS of the Bode plot as shown in the figure is what? तो you guys need to tell me GSHS dB में होगा क्या, और यहाँ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड लॉग स्केल में। जरा बताओ बच्चों कि जैसे ही 2 रेडियन पर सेकेंड से पहले स्लोप था कितना था? 2 रेडियन पर सेकेंड से जो पहले स्लोप था क्या वो -20 dB पर डिकेड था? यस। तो बच्चों जरा बताओ कि अगर -20 dB पर डिकेड था तो यहाँ पे अगर मैं G ऑफ S H ऑफ S अगर लिखता हूँ प्यारे बच्चों, अगर G ऑफ S H ऑफ S अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को बताओ कि इसमें कितने पोल ओरिजिन पे है? हाउ मेनी पोल्स एट ओरिजिन? 1 पोल एट ओरिजिन। सो यू शुड राइट 1 पोल एट ओरिजिन। यस। जैसे ही बच्चों 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया, जैसे ही 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया, देयर विल बी अ चेंज इन स्लोप। स्लोप विल चेंज फ्रॉम -20 to -40। -20 to -40 मींस 1 मोर पोल अकर एट 2। सो वी शुड राइट 1 + s upon 2। शुड राइट 1 + s upon 2। यस। And student, we are here only. As soon as 20 will come, what will happen? We are running at -40 now, and when you will add
plus 20 here, then only you will get minus 20. It means we are having 1 plus s upon 20 only. बोलो बच्चों ये सुन, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप LCM लोगे तो k का वैल्यू मॉडिफाई होके अगेन कांस्टेंट टर्म है तो उसको k बोला जा सकता है, तो 1 अपॉन s प्लस 2 अपॉन 2, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसने LCM लेने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसने इसको अल्टीमेट, वो भी तो कांस्टेंट टर्म ही होगा, तो उसी को उसने k बोल दिया है। यस, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट गाइज। यस, तो इस क्वेश्चन में केवल ये देखना था कि 2 पे पोल, 20 पे 0 और एक पोल ओरिजिन पे। अगर एक पोल ओरिजिन पे था, केवल इस ऑब्जर्वेशन से 2 ऑप्शन गायब हो रहे थे। बोलो कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद गायब हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली गायब हो गया, क्योंकि इन दोनों में ओरिजिन पे एक 0 था, मतलब 0 दे रखा था ओरिजिन। देखो ओरिजिन पे 0 कहाँ है यार, ओरिजिन पे तो पोल है, ओरिजिन पे 0 नहीं है सर, ओरिजिन पे पोल। पोल का मतलब नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर नहीं आ सकता। मतलब ए गलत था, डी गलत था, या तो बी या तो सी। और आपको ये पता है कि अरे 2 पे 0 कहां से है यार, 2 पे तो पोल है, 2 पे तो पोल है, और 20 पे तो 0 है, इसीलिए आंसर बॉम्बे करेक्ट हो गया। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट? तो आई होप बच्चों आप लोग सभी एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में कंपनसेटर वाले कंसेप्ट से कर रहे होंगे, ट्रिक के साथ कर रहे होंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ। इज दिस क्लियर बच्चों? So the magnitude Bode plot of a network, the magnitude Bode plot of a network is shown in the figure. The maximum phase angle phi m and the corresponding gain gm respectively are what? You all guys should reply. Yes. The magnitude Bode plot of a network is shown in the figure. The maximum phase angle phi m and the corresponding gain gm respectively are what? So first thing that you should notice, we are having 2 corner frequencies here, 1/3 and 1. We are having 2 corner frequencies here, 1/3 and 1. So guys, do reply fast. If we are having the 2 corner frequencies here, gs, if we are having the 2 corner frequencies here, g of s, then you need to check, sir, initially we are having at 0 dB line, sir. As soon as the 1/3 corner frequency will come now, there will be a 0 because the slope is plus 20 dB per decade. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी बता रहा हूं मैं, ये एक लेंदी कन्वेंशनल मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है बाय यूजिंग द कंपनसेटर कंसेप्ट। मैं बताऊंगा बच्चों बाद में कि यही एक लीड कंपनसेटर बन जाएगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, जरा देखिए, GS इक्वल टू 1/3 and 1. If we are having the initial slope 0, जैसे ही 1/3 आया, there will be a change in slope, and after that the slope is plus 20, so we should write in numerator. We should write in the numerator, what we should write in the numerator guys, 1 plus s upon 1/3. Do you guys agree with me? 1 plus s upon 1/3, do you guys agree with me? Yes. We are running at this frequency guys, as soon as the 1 radian per second will come now, there will be a change in slope. एंड बच्चों क्योंकि पहले प्लस 20 था और अब स्लोप 0 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एक पोल आया, मतलब आप लिखोगे यहाँ 1 plus s upon 1. I hope you guys all agree with me. I hope you all guys agree with me, and I hope you guys don't have any single doubt till here. Every student just do reply, is this clear or not? Now we are left with the gain k term. Yes. So first of all, क्योंकि एग्जामिनर आपको फेज, मैक्सिमम फेज एंगल एंड मैक्सिमम गेन मार्जिन नहीं है, ये मैक्सिमम गेन है। मतलब एग्जामिनर आपको ये पूछ रहा है कि एंगल का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा और गेन का वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपको फेज को मैक्सिमम करना है या गेन को मैक्सिमम करना है, सबसे पहले आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा। और अगर आप फेज को मैक्सिमम करना चाहते हो, सबसे पहले आपको इसका एंगल, मतलब फेज इक्वेशन लिखना होगा। और फेज इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमने बोडे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया। Now student, what is your transfer function? The transfer function is nothing but your GS value is nothing but k dot. What is the k? First of all, you should find out k. First of all, we need to find k. Yes, the k value is nothing but y equal to mx plus c. You guys need to tell me, bachcho, what is the y value? Don't you think the y value is 0 only, sir? Y value is 0. The initial slope is 0 also, log of 0 also, plus c only. So don't you think we are having the c value 0? So guys, don't you think the value of c equal to 0? Yes sir, c value is 0. And if c value is 0 perfectly,
each and every student just do reply fast. Is this clear or not, guys? If C value is 0, then you need to tell me what is C. C equal to 20 log of 10k. If C value is 0, guys, we should write 20 log 10k. So we should write k equal to 10 की power 0. So we should write k equal to 1. So we should write k equal to 1. And once the gain k value is 1, na guys, once the gain k value is 1, so what will be your g of s? Tell me. K value is 1, na sir, so we should write 1 plus 1 upon 1 by 3. It means we should write 1 plus 3s upon, we should write here 1 plus s. Yes sir. And what is the k value? K value is 1 only, so we should write like this, 1 plus 3s upon 1 plus. This is the value of gs, guys. This is the value of gs. Yes. So we should write here the value of gs, and we can write like this: the value of gs is nothing but 1 plus 3s upon 1 plus s, 1 plus 3s upon 1 plus s, 1 plus 3s upon 1 plus 3s upon 1 plus s. So this is the value of gs, guys. I hope you are getting the point. This is the value of gs. I hope you are getting the point. And we know that the value of s is equal to j omega only. So when you will put this, you will get gj omega. You will get 1 plus 3j omega upon, you will get 1 plus j omega. Upon you will get 1 plus j omega. Yes. So gj omega value is 1 plus 3j omega upon 1 plus j omega. And this is nothing but the equation number 1. This is nothing but the equation number 1. So student, if we talk about the magnitude mode of gj omega, it will be under root of 1 plus. लेकिन क्या मेरे को पहले एंगल निकालना चाहिए, क्योंकि एंगल को मैक्सिमम करना है. यस सर. सो स्टूडेंट, अगर आप पहले एंगल निकालोगे, देन व्हाट यू शुड राइट द एंगल फाई is nothing but in the numerator we know that the angle will be tan inverse imaginary upon real, so it will be 3 omega upon 1 only. Tan inverse 3 omega upon 1, and the denominator the angle will be tan inverse omega, so in the numerator it will become minus tan inverse omega by 1 only. And this is the equation number 2. Student, we have to make this phase angle maximum. How you can make the phase angle maximum, guys? We should make d phi upon d omega equal to 0. We have to differentiate the phase. We have to differentiate the phase and equate to 0 to find out the frequency at which this phi will become maximum. बच्चों, किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं. बिल्कुल मैथ्स का पता होगा आपको. तो क्योंकि मैं phi को phi m करना चाहता हूँ, I have to find out the maximum value of phase. We have to find out the maximum phase value, the maximum phase, and it is defined as phi m only. So to find phi m, we should do 2 steps, sir. तो अगर हमको करना है बच्चों phi m निकालना है, तो step number 1 is we should find d phi upon d omega and equate to 0. And the step number 2, when you will put d phi upon d omega 0, you will get actual value of omega, and this value is nothing but omega m, because ये maximum पे है तो हम इसको omega m से represent कर रहे हैं. And when you will put omega m in phi, you will get phi m. मतलब phi की इक्वेशन में ओमेगा m रखने पे वो phi m मिलेगा. बोलो क्या बोलते हो यस. अब बच्चों, सबसे प्रॉब्लम यहाँ क्या आएगा कि tan इनवर्स x का अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन पूछूं, तो आप में से बहुत से लोग बोल दोगे 1 upon 1 plus x square d phi upon d omega. If I will ask the differentiation of tan inverse x, तो आप बोलोगे 1 upon 1 plus x square होता है. 1 upon 1 plus x square होता है. बोलो हाँ या ना. यस सर, होता है. 1 upon 1 plus x square होता है. लेकिन बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कि tan इनवर्स ax का क्या होता है, तो आप में से बहुत से लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है: tan इनवर्स x by a, the differentiation of this is nothing but a upon a square plus x square. Are you guys getting the same? Yes. Are you all guys getting? Yes. So what we are having, if you will find the differentiation of tan inverse x by a, you will get a upon a square plus x square. And when you will find d by dx of tan inverse ax, अगर आप tan inverse ax को निकालते हो प्यारे बच्चों, then what you will get? बोलो बच्चों बोलो. tan inverse ax क्या मिलेगा बताओ? So you will get actually a upon 1 plus a square x square. Every student just do reply, is this clear or not? Yes.
अब ये कैसे आया सर, कैसे आया ये? अरे हमने ए को रिप्लेस कर दिया 1/a से यार, तो ये क्या हो गया, x अपॉन 1/a क्या हो गया, x हो गया। यहाँ भी a को 1/a किया, यहाँ भी 1/a स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, कट गया, ये आ गया a अपॉन 1 + a स्क्वायर। ये है a, ये है x। यहाँ x के रेस्पेक्ट में था डिफरेंशिएशन, यहाँ ओमेगा के रेस्पेक्ट में है यार। इतना कॉमन सेंस तो लगा लोगे आप। जरा बोलो a का वैल्यू क्या है, 3 है सर, तो a अपॉन 1 + a स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा 3 का होल स्क्वायर 9 ओमेगा स्क्वायर माइनस, बच्चों यहाँ बोलोगे आप सर इट विल बी 1 अपॉन 1 + ओमेगा स्क्वायर एंड यू हैव टू मेक इट 0, यू हैव टू मेक इट 0। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई फास्ट, इज दिस क्लियर और नॉट? तो बच्चों यहाँ पता है क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 3 अपॉन 1 + 9 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + ओमेगा स्क्वायर। यस सर, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + ओमेगा स्क्वायर। यस। In the next slide, student, what we need to add? In the next slide, what we need to add? We should write here 3 upon. We should write here 3 upon 1 + 9 omega square. 3 upon 1 + 9 omega square equal to 3 upon 1 + 9 omega equal to 1 upon 1 + omega square equal to 1 upon 1 + omega square. Yes, equal to 1 upon 1 + omega square. Yes. So you guys need to tell me बच्चों कि यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, then you will get 3 + 3 omega square equal to 1 + 9 omega square. So ultimately you will get 3 - 1 equal to 2, and my dear student 9 - 3 is nothing but 6 omega square. So it is 2 3 ja 6 na sir. So we are having 1 + 3 omega square actually. So we are having 1/3 equal to omega square. So value of omega is nothing but 1 upon √3. Value of omega is nothing but 1 upon √3. Yes. So this is nothing but omega m, guys. How many of you are getting the same? Yes. If I will put the value of, when we will put the value of omega m in phi m, so just put the value of omega m, put value of omega m, put value of omega m in phi to get phi m, जो कि हमको चाहिए to get phi m. phi का वैल्यू क्या था बच्चों, phi का वैल्यू क्या जरा बताओ यार। तो सर एंगल का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था हमने इधर, क्या था सर, tan इनवर्स, ये रहा tan इनवर्स 3 ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। तो हम लिख रहे हैं यार tan इनवर्स 3 ओमेगा, tan इनवर्स 3 ओमेगा माइनस tan इनवर्स 3 ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। यस। एंड स्टूडेंट हियर व्हेन यू विल पुट ओमेगा m, here when you will put omega m in place of omega, so what is the value of omega m you are getting? You are getting the omega value is 1 upon √3 radian per second. Omega m value 1 upon √3. Just substitute the here. So student, when you will substitute omega as a omega m, then this phi will become phi m. So phi m value will be tan inverse 3 dot omega m value is 1 upon √3 only. Yes sir. And minus tan inverse omega m value is 1 upon √3 only. Yes sir. Every student just do reply, is this clear or not clear sir? So the value of phi m will be what sir? The value of phi m will be tan inverse √3, 3 upon √3 only, and minus we are having again the value tan inverse 1 upon √3. Yes sir. So every student just do reply, tan inverse √3 is what? Phi m value is tan inverse √3 is 60 degree or minus 30 degree, and 60 degree minus 30 degree is nothing but 30 degree, and this is nothing but the phi m. This is nothing but the phi m. Every student just do reply, is this clear or not? Every student just do reply, is this clear or not? Yes sir. So this phi m value is nothing but 30 degree. This phi m value is nothing but 30 degree. और 30 डिग्री आने से दो ऑप्शन तो गए सर, या तो सी या तो डी, बिकॉज ऑप्शन आ गया है 30 डिग्री। बोलो क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई फास्ट। बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है सर। तो जी एस इक्वल टू आपको दे रखा है बच्चों 1 + 3s अपॉन 1 +, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए यार। आई थिंक यू गाइज डोंट हैव एनी सिंगल डाउट टिल हियर। आई थिंक यू गाइज डोंट हैव एनी सिंगल डाउट टिल हियर। यस बच्चों, क्योंकि हमारा phi m का वैल्यू आ चुका है, देख रहे हो आप? यस, क्योंकि हमारा phi m का वैल्यू आ चुका है, देखो आप। यस सर, phi m वैल्यूज आ चुका है। 30 डिग्री मतलब या तो सी है या तो डी है, ठीक है। अब हमको एक और क्या चाहिए था? एक और चाहिए था गेन। एक और क्या चाहिए था आपको? गेन। यस सर। तो आइए बात करते हैं गेन का।
अगर मैं लिखता हूं बच्चों गेन, जो कि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन क्या था सर? ये रहा 1 प्लस 3 जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा था सर। तो आपको पहले ये लिखना चाहिए कि जी जे ओमेगा क्या है। सबसे पहले हमको लिखना चाहिए कि जी जे ओमेगा क्या है। तो ये था सर 1 प्लस 3 जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा, 1 प्लस 3 जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा। यस, every student just do reply fast. Yes, you guys need to tell me what is the magnitude of gj omega. The magnitude of gj omega will be 1 plus 9 omega square upon under root of 1 plus omega square. Yes, so every student just do reply. This is what guys gain, and अगर मैं magnitude निकालता हूं तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मतलब 9 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलो क्या बोलते हैं। और अगर इस मैग्नीट्यूड में बच्चों अगर मैं ओमेगा की जगह ओमेगा एम पुट करता हूं जिसका वैल्यू 1/√3 है, देख रहे हो आप, अगर इस ओमेगा एम की जगह अगर मैं 1/√3 पुट करता हूं, कहाँ है ओमेगा एम? ये रहा ओमेगा एम, ये सर आया था ओमेगा। तो मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमम गेन मिल जाएगा सर। तो मैक्सिमम गेन निकालते हैं, आइए तो आइए निकालते हैं मैक्सिमम गेन। मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इज नथिंग बट रूट ऑफ 1 प्लस 9 इंटू ओमेगा एम होल स्क्वायर। What is the omega m value? 1/√3. 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखोगे आप 1 प्लस ओमेगा m का होल स्क्वायर। ओमेगा m वैल्यू क्या है? 1/√3 का होल स्क्वायर क्या है? 1/3। मतलब जरा बताओ आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन क्या आ गया? अपॉन आएगा सर आपका अंडर रूट ऑफ अगेन 3 + 1 इज 4/3 सर। यस सर, √4 से √4 कट गया सर। एवरी स्टूडेंट जस्ट लेट मी नो यस और नो। √4 से √4 कट गया बच्चों, तो यहाँ वैल्यू आएगा √3 और √3 का वैल्यू होगा बच्चों 1.732। एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, इज दिस क्लियर और नॉट? यस। और ये गेन आया है अभी कांस्टेंट वैल्यू आया है 1.732 इसका आपने डीबी वैल्यू नहीं निकाला है। बच्चों देखो इस क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत से लोग पता है जैसे ही 1.732 आएगा ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। बहुत से लोग इतना कुछ करने के बाद अगर उनका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि 1.73 जैसे ही आया उनको ऑप्शन में मिल गया यार 1.73। बट बच्चों कितना बड़ा ट्रैप है यार कि अगर 1.73 का डी भी लोगे तो 4.77 आएगा। इसका मतलब इतना सारा सब कुछ करके भी आपको आईआईटी खड़गपुर में 2 नंबर के क्वेश्चन में, आईआईटी खड़गपुर के 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है कब? जब आप डायरेक्ट 1.73 से ऑप्शन नंबर डी कर दोगे। ये भी रॉन्ग है यार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई +30 डिग्री एंड 4.77 dB। 4.77 dB। यस सर। तो बताओ बच्चों कि यहाँ पे क्या होने वाला है? अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो बताइए। तो बच्चों 1.73 है, 1.73 है। अगर मैं इसका dB वैल्यू निकालता हूँ, इफ यू विल फाइंड द dB वैल्यू ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इन dB, सो व्हाट यू विल गेट? You will get 20 log 10 1.732. So when you will find this guys, what you will get? When you will find this guys, what you will get? You will get 4.77 dB. You will get 4.77 dB. Yes. You will get 4.77 dB. जरा बताओ बच्चों कि 4.77 dB का मतलब which option is correct sir? Which option is correct? Now correct answer option number D for Delhi. Every student just do reply, is this crystal clear or not? I think this part is crystal clear to you. I think you guys don't have any single doubt till here. I think you guys don't have any single doubt till here. Yes sir. We don't have any single doubt. Yes, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। आगे चलते हैं, आइए ये बताइए, चलिए जल्दी से ये बताइए। Which of one of the following transfer function represents the Bode plot shown in the figure? अब ये क्वेश्चन भी क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे भी गेन के नहीं पूछा है। पिछला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था। मैंने बोला था कि पिछला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने जानबूझ के अभी कन्वेंशनल मेथड से कराया है। इसी क्वेश्चन को हम बाद में कंपनसेटर से जब करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से सेकंड्स में हो जाएगा बच्चों। अभी आप मेरे को बताइए 40 dB पर डिकेड 60। तो जैसे ही ये ट्रांसफर फंक्शन देखा, पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? सर आपने रूल बताया था, रूल नंबर 1, स्टेप नंबर 1 था ऑब्जर्व द स्टार्टिंग स्लोप। ऑब्जर्व द स्टार्टिंग स्लोप। द स्टार्टिंग स्लोप इज 40 dB पर डिकेड। सो बिकॉज द स्टार्टिंग स्लोप इज 40 dB पर डिकेड, वी कैन से दैट कि सर वी आर हैविंग 2 zeros एट ओरिजन। वी आर हैविंग 2 zeros एट ओरिजन। So don't you think we should write like this k s square?
we are having 2 zeros at origin, and as soon as the 10 radian per second will come, as soon as the 10 radian per second will come, there will be a change in slope, और जो change in slope होगा वो क्या, +40 में क्या करें कि -60 हो जाए, +40 में क्या करें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. What you guys need to add in +40 so that you will generate -60, we should add -100 guys. Yes. So -100 means 5 poles. -100 means 5 poles. So we are having 1 plus s upon 10 की power 5. Each and every student just do reply fast. Is this clear or not? Is this crystal clear or not guys? Yes or no? Yes. So this is the value of GS. K dot s square upon 1 plus s upon 10 की power 5 आएगा सर. यस सर. कहाँ है ये, कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर चेन्नई में है सर. तो के एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस प्लस 10 का होल 5. इज दिस क्लियर गाइज? इज दिस क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? सो व्हाट वी शुड राइट के एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस बाई 10 की पावर 5. ओके ओके डियर स्टूडेंट, ओके, शाबाश. सो यू ऑल गाइज नीड टू टेल मी, शैल वी गो फॉर नेक्स्ट? शैल वी गो फॉर नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट? यस और नो? चलिए तो बात करते हैं आगे की तरफ. ये अब बच्चों ये आता है आपका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन. अब नेक्स्ट लेवल क्यों बोला मैंने? क्योंकि सर इस क्वेश्चन में ω1 और ω2 जो है वो अननोन है सर. फाइंड ω1 एंड ω2 एंड द ट्रांसफर फंक्शन. फाइंड ω1, ω2 एंड ऑल्सो द ट्रांसफर फंक्शन. फाइंड ω1 एंड ω2 एंड ऑल्सो द ट्रांसफर फंक्शन. सो व्हाट इट इज माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज यू शुड राइट द स्लोप इक्वेशन टू फाइंड आउट ω1, ω2. Here ω1 and ω2 are unknown. If you are able to find ω1 and ω2 first of all, then after it will become the previous question. अगर ω1 ω2 आ जाएगा फिर तो ये पिछला क्वेश्चन बन जाएगा, और पिछले क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन लिखना था, मतलब ट्रांसफर फंक्शन लिखना आता है बॉडी प्लॉट्स. तो ω1 ω2 कैसे निकालना है वो हमको सीखना है. तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ फ्रीक्वेंसी अननोन आ जाए तो आपको लिखना है स्लोप इक्वेशन, और स्लोप होता है डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x. ठीक है. What is the difference in y guys? So you should write difference in y. 26 minus 20, 26 minus 20 difference in y. 26 minus 20 difference in y upon difference in x. 26 के corresponding ω1 है सर, तो you should write log of ω1 minus log of 10 and is equal to what? Tell me. 26 के corresponding जो frequency है log of ω1, 20 के corresponding जो frequency है वो है 10. Yes sir. So what we are having 26 minus 20 upon log of ω1 minus log of 10, and the slope is remain same, that is plus 20 only. And the slope will be remain same, that is plus 20. Each and every student just do reply fast. Is this clear or not? And student, when you will calculate, you will get the constant value ω1. जब आप देखोगे यहाँ तो केवल एक ही अननोन वैल्यू है, एंड दिस वैल्यू ऑफ ω1 इज नियर टू 19 पॉइंट समथिंग. तो मैं लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 20 रेडियन पर सेकेंड. आई होप यू विल गेट दिस. आप निकाल के देखना, कैलकुलेट करके देखना, आपको मिलेगा. यस. सिमिलरली बच्चों ये इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट था. बाकी वैल्यू कैसे आया? कैलकुलेटर से आया बच्चों, कैलकुलेटर से. सेकंड बच्चों, अगर मैं इस और इस लाइन का स्लोप इक्वेशन लिखता हूँ अगर, देन व्हाट आई शुड राइट. यहाँ पे 0 dB है सर, यहाँ 0 dB. So we should write 26 minus 0 dB. We should write 26 dB minus 0 dB upon. We should write 26 dB minus 0 dB. 26 dB minus 0 dB equal to log of ω1 equal to log of 10 ω1 minus log of 10 ω2. So 26 dB minus 0 dB, 26 dB minus 0 dB. तो 26 के कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है बच्चों? 26 के कोरस्पॉन्डिंग log ω1 और 0 dB के कोरस्पॉन्डिंग ω2. स्लोप कितना है सर? स्लोप -20. स्लोप कितना है सर? स्लोप -20 है. एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई. इज दिस क्लियर और नॉट? यस. अब आप बोलोगे सर ω1 तो आ चुका है, ω1 कितना है? 20, क्योंकि आ चुका है, मैंने 20 लिया. तो यहाँ जब कैलकुलेट करोगे ω2 का वैल्यू 398, 399 के आसपास आएगा. 399 के आसपास आएगा. मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ यहाँ पे 400. यस. सो नियर टू 399 समथिंग या 399 के आसपास आया, मतलब 400 रेडियन पर सेकंड लिया ω1 ω2. अब यहाँ मुद्दे की बात ये है बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल है तो मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ. आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे क्या ω1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है या ω2? अगर लाइव क्लास होता तो मैं जरूर पूछता आपसे.
मेरे को बताओ बच्चों कि ओमेगा 1 पे एक चेंज इन स्लोप हुआ है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच चेंज इन स्लोप अकर। ओमेगा 1 इज ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एट, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन यही है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे चेंज इन स्लोप विल अकर इन द बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। यस सर। सो ओमेगा 1 पे चेंज इन स्लोप हुआ है, मतलब ये एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ये एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ओमेगा 2 पे चेंज इन स्लोप नहीं हुआ। ओमेगा 2 को तो ये क्रॉस करके निकल गया, इंटरसेक्ट होके इससे गुजर गया, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। इट इज नॉट ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी गाइस, इट इज नॉट ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी गाइस, इट इज नॉट ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर, इट इज नॉट ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर। यस सर, यस सर, शाबाश। So what you need to write guys, every student just do reply fast. What you need to write? 26 minus 20 upon log of omega 1 minus log of 10 equal to 20. 26 dB minus 0 dB is equal to log of 20 minus log of omega 2 equal to minus 20. बोलो रे बच्चों, बोलो क्या बोलते हो रे यार, हाँ या ना? यस। So I think dear student, you all guys don't have any single doubt till here. कैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 आया, और जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ ही चुका है तो अब ट्रांसफर फंक्शन भी आ जाएगा सर। लो के अपॉन, बोलो जरा सबसे पहले इनिशियल स्लोप। व्हाट इज द इनिशियल स्लोप? 0 ओनली। व्हाट विल बी द इनिशियल स्लोप? 0 ओनली। एज सुन एज द 10 रेडियन पर सेकंड विल कम, देयर विल बी 1 0 अकर सर। सो व्हाट वी शुड राइट? वी शुड राइट द न्यूमरेटर 1 प्लस एस अपॉन 20। एग्री और नॉट? यस। डू यू गाइज ऑल एग्री और नॉट? यस सर। 1 प्लस एस बाई 20। यस सर। सो राइट नाउ वी आर एट हियर, जैसे ही ओमेगा 1 आया, ओमेगा 1 का मतलब क्या है? ओमेगा 1 का मतलब सर 20 आया लगभग। जैसे ही 20 रेडियन पर सेकंड आया, देयर विल बी ए चेंज इन स्लोप। प्लस 20 में क्या करें कि माइनस 20 हो जाए? माइनस 40, माइनस 40 करना पड़ेगा सर। और माइनस 40 का मतलब 2 पोल करना पड़ेगा सर, तो लिखेंगे आप 1 प्लस एस अपॉन 20 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एस अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई फास्ट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर और? So k dot 1 plus s by 20 and upon 1 plus s upon 20 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों क्या बोलते हो यार? I hope you all guys getting the same. I hope you all guys getting the same. Yes. Omega 2 is not a corner frequency. Yes. तो ये बनेगा सर k कैसा निकलेगा सर? k बताओ ना सर, k मुद्दे की बात तो k है। आइए k निकालते हैं। y equal to mx plus c. What is the value of y guys? तो y value is 20 dB. So we should write 20. Initial slope is 0 only. So c is 20 dB. Every student just do reply fast. Is this clear or not? Is this crystal clear or not guys? Yes. So it is y equal to mx plus c. It is y equal to mx plus c. Every student just let me know. Do you guys agree with me? Yes, agree. mx plus c. बिल्कुल agree करते हैं सर। y equal to mx plus c where c equal to 20. The c value is 20 sir. Yes. अगर c value 20 आया बच्चों तो मेरे को बताओ कि c equal to 20 log k होता है क्या? 20 log क्या होता है? अगर c का वैल्यू 20 आया तो ये हो गया 20 इक्वल टू 20 log k। 20 से 20 एक बार कटा बच्चों, तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या k का वैल्यू 10 की पावर 1 मतलब k का वैल्यू 10 आया क्या? k का वैल्यू 10 आया क्या प्यारे बच्चों? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। k का वैल्यू 10 आया ना सर? यस। तो यहाँ लिख दोगे आप k का वैल्यू 10 है सर। सो 10 डॉट 1 प्लस एस अपॉन 20, 1 प्लस एस अपॉन 20 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द जीएस वैल्यू। यस सर, शाबाश। हाँ चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट गेट क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं इस गेट क्वेश्चन का। अगर इस गेट क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। Consider the Bode magnitude plot shown in the figure. Assume that all the poles and zeros are real valued. Then student find out the gate question electronics 2015. The first thing that you need to observe कि sir FL 300 and 900 to FH. Yes sir. बच्चों इस क्वेश्चन में अगर मैं स्लोप इक्वेशन लिखना चाहूँ मेरी मर्जी से तो बात अलग है, बाकी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट मेथड से आपको इक्वेशन लिखना लिखना सिखाऊं तो बच्चों हमको लिखना चाहिए कुछ ऐसा। आई होप आप एग्री करोगे। 40 माइनस 0, देखो जरा 40 माइनस 0, 40 माइनस 0, 40 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है log ऑफ 300, 40 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है log ऑफ 300 माइनस
40 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है log ऑफ 300 और FL के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है 0, तो आप लिखोगे यहाँ log ऑफ FL, आप लिखोगे यहाँ log ऑफ FL. यस सर. एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? यस सर. सो 40 minus 0 equal to log of 300 minus log of FL, and the slope is plus 40 dB per decade, and the slope is plus 40 dB per decade. Yes sir, the slope is plus 40 dB per decade. Yes sir. अब बच्चों यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है? केवल और केवल अननोन वैल्यू है FL, और FL को जब कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो आएगा 30 हर्ट्ज. अब ये कैसे आया? इसको कैलकुलेट करने के बाद आया. मैं बोल रहा हूँ कि इसको करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि अगर और किसी क्वेश्चन में करना पड़ जाए इक्वेशन तो ऐसा लिखा जाता है. अच्छा, इस क्वेश्चन में जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी सर? उसके कारण बताऊंगा. वो है मेथड नंबर 2. ये अभी चल रहा है हमारा मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 होता है कन्वेंशनल अप्रोच, मतलब प्रॉपर अप्रोच. यस. अगर मैं सेकंड में इक्वेशन लिखता हूं तो मैंने 900 के कोरस्पॉन्डिंग कितना मैग्नीट्यूड लिया? 40. तो हमने लिया यहाँ 40 माइनस 0 अपॉन 40 माइनस 0. 40 के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो 900 है सर, तो आप लिखोगे यहाँ log ऑफ 900 और माइनस लिखोगे बच्चों log ऑफ FH के कॉरस्पॉन्डिंग 0 dB है ना सर, तो यहाँ लिखोगे आप log ऑफ FH इक्वल टू जो स्लोप है ना सर वो कितना पता है? -40. वो कितना पता है? -40. यस. सो एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? यस. इज दिस क्रिस्टल क्लियर और नॉट गाइस? यस. तो 40 माइनस 0 अपॉन log ऑफ 900 माइनस log ऑफ FH इक्वल टू -40. 40 माइनस 0 अपॉन log ऑफ 900 माइनस log ऑफ FH इक्वल टू -40. यस. अब इस पूरी अननोन इक्वेशन में बच्चों केवल एक FH का वैल्यू, इस पूरी इक्वेशन में केवल एक FH का वैल्यू अननोन है. इस पूरी इक्वेशन में केवल एक FH का वैल्यू निकालोगे अगर, तो वो FH का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेटर यूज कर लो, 9000. अब ये जो हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये है मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 मतलब फर्स्ट कन्वेंशनल तरीके से निकालना. लेकिन इस क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 इतना इफेक्टिव था कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकंड में मिल सकता था. और वो 10 सेकंड में कैसे मिलता सर? यहाँ पे ये स्लोप था 40 dB पर डिकेड, मतलब आपको ये 40 dB मैग्नीट्यूड ट्रेवल करना था एक डिकेड के अंदर. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 300 से, अगर ये FL से 300 पे आया है, मतलब ये y एक्सेस में एग्जैक्टली 40 dB ट्रेवल किया है. अब जो स्लोप 40 dB पर डिकेड है तो ये भी एक डिकेड होना चाहिए, तो 300 के जस्ट पहले वाला डिकेड 30 होता है सर. यस. अभी आप कहां पे हैं? इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 40 dB. अभी हम 40 dB पे हैं और 40 dB 0 कब हो रहा है? 40 dB 0 यहां पे हो रहा है. तो इसका मतलब y में हम 40 dB ट्रेवल कर रहे हैं और स्लोप बोल रहे हैं -40 dB पर डिकेड. अब 900 का एक डिकेड क्या आएगा नेक्स्ट? तो यहां बोलोगे आप 9000. तो 900 से 9000, तो ये एक डिकेड है सर, तो इसीलिए यहाँ पे जो FH का वैल्यू आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा सर 9000 हर्ट्ज. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट गाइज. यस और नो? यस. सो आई थिंक डियर स्टूडेंट टिल हियर यू गाइज डोंट हैव एनी सिंगल डाउट. आई थिंक गाइज टिल हियर यू गाइज डोंट हैव एनी सिंगल डाउट. सो अगर FH का वैल्यू आ गया, FL का वैल्यू भी आ गया बच्चों, तो आप यहाँ से लिखोगे ना, आप यहाँ से लिखोगे ना कि FH वैल्यू इज 9000 माइनस FL वैल्यू इज FL value is 30 only, so you should write 8970. So you should write here 8970 hertz only. You should write 8970 hertz only. Each and every student just do reply fast. Just do reply fast. Is this crystal clear or not? Reply करेंगे. Reply करेंगे सर. Reply करेंगे. शाबाश. 897. तो ये था सेकंड मेथड, स्मार्ट तरीका. ये था आपका कन्वेंशनल तरीका. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों ये जो क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिकल, देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है इलेक्ट्रिकल 2016 सेट 1 में पूछा गया. कंसीडर द फॉलोइंग एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट. ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकंड. ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकंड. यस. चलिए सो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यहां पे आप देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट. 0.5 को इंटरसेक्ट करता हुआ 12 dB में निकल गया, 8 पे निकल गया. क्या बात है सर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द अबव बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट. यस सर. तो बच्चों सबसे पहली चीज जो आपको यहां मिलेगी इलेक्ट्रिकल 2016 सेट 1, सबसे पहली चीज जो आपको यहां लिखना चाहिए वो ये कि सर इनिशियल स्लोप कितना है. व्हाट इज द इनिशियल स्लोप? +20 dB पर डिकेड.
So because the initial slope is plus 20 dB per decade, because the initial slope is plus 20 dB per decade, we should write here S. Yes, sir. But 0.5 is not a corner frequency, sir. Corner frequency is omega 1, that is unknown here. And omega 2, here is also change in slope occur. Here is also change in slope occur. And we know that the frequency at which change in slope occur is called corner frequency only. Yes, sir. Omega 1 only, omega 2 only. So what we should write, as soon as omega 1 will come, there will be a change in slope, plus 20 से 0 हो जाएगा sir. So you should write 1 plus s upon omega 1. 1 plus s upon omega 1. Yes, sir. And right now we are traveling here बच्चों, जैसे ही omega 2 आया, there is change in slope. और यहाँ स्लोप कितना हो गया, पहले प्लस 20 से 0 हुआ था, मतलब एक पोल आया था, अभी 0 से माइनस 40 हो गया, मतलब 2 पोल आएगा, और अगर 2 पोल आएगा तो आप लिखोगे 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 2 का वैल्यू होल स्क्वायर. यस. नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विथ y इक्वल टू गेन के. ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं पता, अभी निकालेंगे. स्टिल वी आर लेफ्ट विथ गेन के. व्हाट इज द वैल्यू? ये कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ. बाकी तो ऑप्शन एलिमिनेट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें 3 पोल होंगे सर, और एक 0 होगा ओरिजिन पे. अब जो कि कहाँ नहीं है 3 पोल, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, बिल्कुल गया. यहाँ भी नहीं है, ये भी गया. तो ऐसे आप ऑप्शन गायब कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कन्वेंशनल तरीका. तो ये ट्रांसफर फंक्शन बनेगा सर. नाउ ओमेगा 1 ओमेगा 2 और के निकालते हैं. आइए निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? अगर बच्चों इस लाइन का इक्वेशन लिखा जाए, स्लोप इक्वेशन, तो यहाँ क्या है, ये 12 dB जो है, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना चाहिए, वहाँ लिखा है जानबूझ के कंफ्यूज करने के. तो 12 dB, तो इक्वेशन क्या हो गया y में, 12 dB माइनस 0, 12 dB माइनस 0 dB अपॉन 12 d माइनस 0 dB अपॉन लॉग ऑफ ओमेगा. 12 dB के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा 1, और फिर 0 dB के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी, तो बोलोगे लॉग ऑफ 0.5. अब इसके बीच में जो भी स्लोप है, स्लोप के साथ यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी चेंजेस. जो भी स्लोप है उस एज इट इज स्लोप को लिखिए, जो भी स्लोप है उस स्लोप को एज इट इज लिख दीजिए. सो 12 dB माइनस 0 dB अपॉन लॉग ऑफ ओमेगा 1 माइनस लॉग ऑफ 0.5. ठीक सर. एंड स्लोप इज 20 ओनली सर. स्लोप इज 20 ओनली सर. एवरी स्टूडेंट जस्ट लेट मी नो, इज दिस क्लियर और नॉट? Each and every student just let me know, is this clear or not? Is this crystal clear, dear student? Do reply fast. Is this crystal clear, student? Do reply fast. Yes. So 12 dB minus 0 dB log omega minus 1 log omega 1 minus log 0.5 equal to what, guys? Equal to what? Log 0.5 is equal to 20 only, sir. Is equal to 20 only, sir. Yes, sir. बच्चों यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे, ओमेगा 1 केवल अननोन है और आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड. अब ये कैलकुलेशन जो है आपको करना पड़ेगा. लॉग है बच्चों, कैलकुलेटर हाथ में ले लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल लो आप. ओमेगा 1 आएगा 2. सिमिलरली बच्चों अगर मैं ओमेगा 2 के लिए बात करूंगा, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसा लिख रहा हूँ. अब इस लाइन की इक्वेशन लिखना है, ठीक है. तो क्या लिखोगे स्लोप में लिखेंगे सर 12 dB माइनस 0 dB अगेन, 12 dB माइनस 0 dB अगेन, 12 dB माइनस 0 dB अपॉन 12 dB के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है लॉग ऑफ ओमेगा 2 माइनस लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 8. यस. बच्चों ये जो स्लोप आया है ना, ये क्या है पता है आपको? ये स्लोप आया है ना, ये क्या है पता है? ये स्लोप है माइनस 40 सर. तो लिखेंगे यहाँ माइनस 40. स्लोप इज माइनस 40 सर. एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, इज दिस क्लियर और नॉट? और यहाँ पे अननोन क्या है पता है आपको? यहाँ अननोन है सर ओमेगा 2. यहाँ अननोन है सर ओमेगा 2, बोलो हाँ या ना? यस. और ओमेगा 2 जो अननोन आया है वो कितना आएगा? वो आएगा 4 रेडियन पर सेकंड. निकाल के देख लो, ओमेगा 2 आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड. निकाल के देख लो इस. तो बच्चों आपको यहाँ क्या लिखना है? y इक्वल टू mx प्लस सी. तो लिखोगे आप y इक्वल टू mx प्लस सी. y वैल्यू कितना है यहाँ? 0 dB. इनिशियल स्लोप कितना है? इनिशियल स्लोप 20 है सर. 20 इंटू लॉग ऑफ ये 0.5 है सर, और ये c है सर. तो 20 लॉग 0.5 सी का वैल्यू कैलकुलेट करो बच्चों. जब सी का निकालोगे यहाँ से पता है क्या आएगा? ये वैल्यू माइनस का आएगा, माइनस 6.04. उधर जाके हो जाएगा 6.02 dB. और अगर सी का वैल्यू 6.02 dB है तो सी इक्वल टू क्या होता है पता है आपको? 20 लॉग के. तो यहाँ से के का वैल्यू निकल के आएगा 2. ओहो मजा आ जाएगा. अब रख दो आंसर में, तो पता है आंसर क्या आ गया? के का वैल्यू कितना आया था? के का वैल्यू 2 आया था. सो 2 इंटू एस अपॉन 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1. व्हाट इज ओमेगा 1? ओमेगा 1 इज 2 सर. जो लोग भी सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे. 1 प्लस एस बाई 2 एस.
कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, ये लाइव है या प्रीमियर है, कुछ लोग इसी में लगे होंगे, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है ये वो, और कुछ लोग तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। यस 1 + ω/2, ओमेगा 2 कितना, ओमेगा 2 कितना, ओमेगा 2 4 है सर, यस 4 होल स्क्वायर। ये तो 2s अपॉन का आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो 2s अपॉन 1 + s/2 1 + s/4 का होल स्क्वायर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, इज दिस क्लियर और नॉट? एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, इज दिस क्रिस्टल क्लियर और नॉट प्यारे बच्चों? यस सर। सो आई थिंक यू गाइज डोंट हैव एनी सिंगल डाउट टिल हियर। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। यस चलिए, तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं एक और। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। आइए बताओ बच्चों, ये गेट क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर द स्टेबल सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू, ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू s की पावर p b1 s की पावर p -1 bp s की पावर q, ये सब लिखा है। The slope of the Bode log magnitude over the converges -60 dB per decade, omega tends to infinity। मतलब आपको फाइनल स्लोप -60 दिख रहा है। फाइनल स्लोप जो होता है बच्चों, पोल और जीरो का डिफरेंस होता है, जीरो और पोल का डिफरेंस होता है, जहां आपको चेक करना पड़ेगा कि पोल डोमिनेट करता है या जीरो डोमिनेट कर रहा है। अगर इफ पोल विल डोमिनेटिंग माय डियर स्टूडेंट, देन यू शुड मेक द डिफरेंस बिटवीन पोल एंड जीरो, एंड द स्लोप व्हाट एवर यू विल गेट नेगेटिव ओनली, क्योंकि पोल डोमिनेट कर रहा है। अगर जीरो डोमिनेट करेगा बच्चों, इफ जीरो विल डोमिनेट, देन जीरो माइनस पोल, आपका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा सर। यस, तो व्हाट वी शुड राइट गाइस, व्हाट वी शुड राइट पोल्स माइनस जीरो, वी शुड राइट पोल माइनस जीरो। इसका मतलब वी शुड राइट q माइनस p। तो बच्चों q और p का डिफरेंस 3 होना चाहिए और q ज्यादा होना चाहिए p से, ये भी पता है आपको। q और p का डिफरेंस 3 होना चाहिए और q p से ज्यादा होना चाहिए। बताइए q = 3 p = 0। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद आया क्या? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद आया क्या? आया ना? यस। तो बच्चों ये है आपका p = 0, ये है q = 3 और दिस इज योर ओमेगा = इन्फिनिटी। तो q - p = 3 आ गया। बोलो क्या बोलते हो? यस। 3 आने से अल्टीमेट स्लोप एक पोल के कारण -20 होता है, डिफरेंस पोल ज्यादा है जीरो से, तो इसका मतलब माइनस अल्टीमेट स्लोप होगा -60 dB पर डिकेड। यस और नो बच्चों? यस। चलिए, इंजीनियरिंग सर्विस से 2013 क्वेश्चन करते हैं एक और। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज tan/1 + s। देख रहे हो, at a frequency of 0.1 radian per second, the straight line Bode plot will have the magnitude of। सबसे पहली चीज, अगर आपको इस क्वेश्चन में यह दिखाई दे रहा है कि सर ये तो ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है और इसमें तो केवल एक ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है और इसमें तो k का वैल्यू भी tan ही है, तो DC गेन k वैल्यू भी tan ही है, तो C वैल्यू निकालना आसान है सर यहाँ, क्योंकि C होता है आपका 20 log 10k। तो अगर आप लिखोगे C = 20 log of 10, k वैल्यू इज 10, तो यू विल गेट C = 20 dB ओनली। आई होप यू गाइज ऑल गेटिंग द पॉइंट। आई होप यू ऑल गाइज गेटिंग द पॉइंट। यस और नो बच्चों? तो योर C वैल्यू विल बी 20 log, C वैल्यू विल बी 20 dB। यस। और बच्चों अगर आपका C वैल्यू 20 dB है और आपको अगर 0.1 रेडियन पर सेकंड पे ये, अगर आप इसका बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करते हो, इफ यू विल प्लॉट बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, इफ यू विल ड्रॉ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट को अगर आप ड्रॉ करते हो, इफ यू विल प्लॉट बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, इफ यू विल ड्रॉ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। यस सर। अगर बच्चों आप बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करते हो तो ये ओमेगा लॉग स्केल में होता है और ये होता है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड इन डीबी। बोलो क्या बोलते हो? इस ये है बच्चों फ्रीक्वेंसी 0.1, ये है फ्रीक्वेंसी 1 और ये है फ्रीक्वेंसी 10। चलता आगे सर। अब मेरे को बताओ बच्चों कि इनिशियली जब 0.1 पे होगा तो C का वैल्यू 20 dB आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। और क्योंकि C का वैल्यू 20 dB आया है तो 20 dB पे कांस्टेंट रहोगे आप? क्या बोलते हो? यस। 20 dB पे कांस्टेंट रहेंगे ना सर? क्या बोलते हो आप? यस सर रहेंगे। अगर C वैल्यू 20 dB है तो कांस्टेंट है सर, यहाँ तक हम कांस्टेंट है, यहाँ तक 20 dB तक हम कांस्टेंट है सर। ये है आपका 0 dB लाइन। जैसे ही बच्चों 1 पे आए, जैसे ही बच्चों 1 पे आया, एक पोल आया और एक पोल ने स्लोप क्या कर दिया पता है? -20 dB पर डिकेड, लाइक दिस। सो एवरी स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई फास्ट कि सर इनिशियल 0 था और इस लाइन का जो स्लोप था वो था आपका -20 dB पर डिकेड।
This is your omega in log scale and this is your magnitude in dB. I hope you are getting the point. I hope you are guys getting the point. Yes. आपको पूछ रहा था कि 0.1 पे क्या होगा 20 dB. 20 dB मतलब चेन्नई सुपर की, सॉरी बॉम्बे ओनली. यस और नो बच्चों? यस. I hope you all guys getting the same. I hope you guys all getting the same. And I think you guys don't have any single doubt till here. ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं. यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं इसको, और नेक्स्ट मिलते हैं अपकमिंग क्लास के अंदर. नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों हम अपकमिंग क्लास के अंदर वेरी सून. अनअकैडमी में बच्चों किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन के लिए यू गाइस कैन यूज़ द प्रोमो कोड LiveAN के. अनअकैडमी पे आना है बच्चों तो प्रोमो कोड LiveAN के लगाना है. ये LiveAN के कोड आप लगा सकते हो. और साथ ही साथ बच्चों अब आपको मैं बता दूं कि ये जो कुछ क्लासेस होने वाली है हमारे इस महीने में लास्ट क्लासेस, इसके बाद में आपको बिग न्यूज़ अपडेट भी होने वाला है बहुत बड़ा, वो मैं आपको अपडेट करूँगा. तो ये है बच्चों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें. आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें. लाइक करें, शेयर करें, हो जाए इंडिया के कोने कोने तक. अगर बच्चों आपको लगता है कि अंकुर सर से पढ़े हो फ़ायदा हुआ है, देन जस्ट इंश्योर दैट यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस टू ऑल योर जूनियर्स, ऑल योर क्लासमेट, ऑल योर कलीग्स. बच्चे तक पहुँचाओ बच्चों कि कौन है अंकुर सर, क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं. इसे ओके बच्चों. और कोई अगर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, ज़्यादा बोले आपके सामने, तो बोल देना काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में. फॉर द अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कंट्रोल सिग्नल डिजिटल, वन एंड ओनली सॉल्यूशन, दैट इज अंकुर शर्मा सर. यू ऑल गाइज LiveAN के, यू ऑल गाइज लोयन आर्मी मेंबर बच्चों. सो लोयन आर्मी मेंबर ज़रा दहाड़ के बता दिया करो एक बार. आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा बच्चों. ये प्रीमियर क्लास था, ये लाइव क्लास नहीं है. काफ़ी मेहनत लगता है रिकॉर्डेड क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बच्चों, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है लाइव में, किसी से बात नहीं कर पाया आज बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच. हमेशा लाइव क्लास में मिलते हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है. आप देख रहे हो किसी का भी लाइव क्लास नहीं हो रहा है इस लेट्स क्रैक इसी चैनल पे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच. तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम बाद में. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लेट्स क्रैक इट गाइस.